जी साजिद साहब, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने चैट बॉक्स में डाली हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए हैं ये। यस मैम, ठीक है। जी, आप सब लोगों को, अगर आपने चैट नहीं देखी तो आपके लिए ये है कि आप अपने पास एक पेपर और पेंसिल रखेंगे। प्लस आपने अपना माइक्रोफोन म्यूट रखना है जब आप बोल नहीं रहे हैं। उसके अलावा आप अपना नेम और अपने स्कूल का नाम जिसके साथ आप अटैच्ड हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आप चैट के अंदर जो है वो पोस्ट करेंगे। जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is going to be interactive. You will be inshallah doing some practical work during this workshop. Romina Qureshi, New York University Teacher Training Institute. Romina, you are right now in Pakistan or you are in United States? Ji, Assalamu alaikum. I just came back from Pakistan 2 days ago, so I'm right now in America. So how did you come to know about this workshop? I have been giving teacher training in Pakistan for the last 3 months at different schools, and I have been a part of several organizations, some chats. वहाँ से मुझे पता चला इसके बारे में, तो that's why I'm attending. I'm looking forward to this. Thank you very much for taking out time and becoming part of this workshop. I thought that you might have seen on LinkedIn. Anyway, I really welcome you and welcome all the other participants as well. Thanks for joining. Yeah? Nice meeting you. Inshallah. Nice meeting you too. Okay. तो हम लोग start करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you very much all the participants for becoming part of this workshop. I welcome you all as the director of Falcon Wisdom Foundation School of Wisdom program. So let's begin our journey towards development. Human development भी है और इसमें schools का basically जो हमारा plan है वो है, इसके ऊपर focused हैं हम। I hope कि I am about to share my screen with you all. आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी, can you all see my screen now? Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay, so this is the first part of the active teaching for active learning workshop. Next week, inshallah, we will conduct the second part of the workshop. So basically, you have any idea what is active learning? That's my question to all of you, just as a quick question. Or have you ever practiced any active teaching methodology or strategy in your classroom teaching? कोई आइडिया है आपको? पहले कभी आपने एक्टिव टीचिंग के बारे में सुना है, पढ़ा है, या उसको प्रैक्टिकली यूज भी किया है आपने कहीं क्लास में? Any answer from anyone? Maybe we used, but not currently. I am aware about this active learning. So when you will explain, so then I will know that whether I have used or not. So I will surely let you know. And make sure you introduce yourself, sir, please. So my name is Majid Mahmood, Mm-hmm. and so I'm also working with the Falcon Wisdom Foundation with reference of Imran Sadiq.
So Okay, he okay. shared this link with me. Okay, okay. Welcome you, sir. Okay, so active learning for this workshop, I have kept it trying to keep it simple, however, at the same time, interactive. We will understand and go over what is active learning, and we will try to use simple few activities in which I will involve you, hands-on activities. That's the reason I've asked you to keep a paper and pencil with you. And then you will be using the same methods. I will share a few other resources with you in which you will get an idea what is active learning and how it can be used while teaching in your classroom. And then you will be, as a project, you will be designing an active learning activity. So basically, just a quick introduction that active learning is basically, as you can see from the word, that it's making the students actively participating. That's just one simple definition I would give. But as far as the methodology, the details, and how it works, we will go over this in this interactive workshop, inshallah. So basically, it's from teaching to activity. We are all teachers, and every day we teach in our classrooms. We go to teach in the morning. सुबह हम स्कूल जाते हैं कि आज मैं एक अच्छा दिन अपने स्टूडेंट्स के साथ गुजारूंगा या गुजारूंगी. We all learn from a lot from our students. हम सब अपने स्टूडेंट से लर्न करते हैं और स्टूडेंट्स आपसे लर्न करते हैं, बिकॉज लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस. और उसमें इंटरेक्शन, डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शंस हमारे साथ जो है वो होते हैं. तो बेसिकली हम जो रेगुलर एक टीचिंग है, ट्रेडिशनल टीचिंग है, उसको माइंड में रखें अगर हम, तो यूजुअली जो प्रैक्टिस होती है स्कूल्स के अंदर या इवन हायर एजुकेशन में भी होती है, उसमें यही है कि वो ज़्यादातर जो है बेसिकली अपनी हम टीचिंग जो करते हैं वो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है, जिसमें लेक्चरिंग हम ज़्यादा करते हैं, टीचर ज़्यादा बोल रहा होता है और स्टूडेंट्स आर मेनली पैसिव लिसनर्स एंड दे आर सिटिंग लाइक. ऐसे ही मैंने देखा है बहुत से क्लासरूम्स में ये होता है कि वो बच्चे बोर हो रहे होते हैं या फिर वो सो जाते हैं या उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता. तो ऐसी टीचिंग का अब दुनिया में उसकी जो रिवायत है वो चेंज हो रही है. Practices have changed due to lot of reasons, lot of factors have contributed to that. So this is a one small warm-up activity for all of you, as I've asked you to keep a paper and pencil. So reflect your experience about lecturing and come up with a one positive and one negative example. I'll give you 5 minutes and then we will interact with each other, that what is your negative or positive experience while you do lecturing in your class. So share with me. You have 5 minutes. Okay, I'll be looking forward to hear from you. पेपर पेंसिल पे आप लिखें कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो आप अपने क्लास में लेक्चरिंग के दौरान आपने किया है. जब आप लेक्चर देते हैं कैसा एक्सपीरियंस है वो. Okay, any ideas so that we can move forward? Basically, it's not just about lecturing. आप अपनी टीचिंग के दौरान आपका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंस की आपने एग्जांपल देनी है. यूजुअली हम लेक्चरिंग ही करते हैं क्लास में जाके. आई थिंक मदद मिलेगी अगर आप खुद एक कोई मिसाल दें. मैंने कुछ लिखा है मस्बत और मनफी क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कोई मिसाल दें तो ज़रा
ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा मुझे। इंस्ट्रक्शंस आपने कहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, बट आई थिंक इफ यू गेव एन एग्जांपल दैट वुड हेल्प। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अपनी मिसाल एक एज अ टीचर, जैसे क्लास में गई, आप समझ लें कि ये एक केस के तौर पे मैं प्रेजेंट कर रही हूँ कि मैं क्लास में गई हूँ, मैंने अपना किताब खोली या मैंने जो भी लेसन बनाया हुआ था वो देखा, मैंने देखा हुआ था या उस वक्त जाके देखा, एंड आई स्टार्ट डिलीवरिंग के मैंने बच्चों से पूछा कि भाई चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद द लेसन, और आज हम ये काम करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगी, मैं वो बताऊंगी या बताऊंगा। तो start doing the speaking and lecturing and telling them, giving and transferring information, जिसे हम dissemination of information भी कह सकते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस में जब आपने बोलना स्टार्ट किया, आपने पढ़ाना शुरू किया या बताना शुरू किया बच्चों को, उसमें एक पॉजिटिव ये हो सकता है कि बच्चों को आपने इंफॉर्मेशन तो शेयर की, लेकिन नेगेटिव ये हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो आपके साथ नहीं हैं, या तो वो कहीं और हैं, फिजिकली प्रेजेंट हैं बट मेंटली वो प्रेजेंट नहीं है। कुछ जो है वो बच्चे जो हैं वो आपसे उकता चुके हैं, बोर हो गए हैं। ये इवन हायर एजुकेशन में भी, मैं स्कूल के खाली बच्चों की एग्जांपल नहीं दे रही, समटाइम्स व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, मेरे भी एक आध प्रोफेसर ऐसे थे, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि जब वो बता रहे होते थे अपनी जो भी स्लाइड्स या जो भी वो दिखा रहे होते थे, तो हमें भी नींद आनी शुरू हो जाती थी, वी स्टार्टेड फीलिंग ड्राउजी। तो बाहर आके तो वी हैड टू हैव अ कॉफी या कोई चीज के भाई ये नींद को कैसे हम दूर करें, इतना बोर लेक्चर, बस वो बोलते जाते थे, बताते। तो दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट। ये इसी तरह के हम सबको कहीं ना कहीं लाइफ में जब हम पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं तो हो रहे होते हैं। मैंने आई हैव सीन समटाइम्स स्टूडेंट्स इवन स्लीपिंग, और एक दफा तो एक ऐसा एक्सपीरियंस था that the student was really snoring, कि वो स्नोर कर रहा था क्लास के अंदर। तो इस तरह के होते हैं एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए मैंने कहा कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है कि कोई सी स्टूडेंट ने आपके साथ बड़ा अच्छा कोई क्वेश्चन रेज किया आपसे या सवाल पूछा आपसे, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इसका एक एक्सपीरियंस जो जिसको हुआ है, कोई भी आप शेयर कर सकते हैं। जी जी रुमीना, आपने कुछ लिखा है, आप कह रही हैं, जी शुक्रिया। नहीं, आई वांटेड एन एग्जांपल, तो बहुत शुक्रिया उसका। मैंने अपना, मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा बिकॉज वी मेक श्योर कि हमारी जो पेडागोजी है क्लास में, दैट इज नॉट टीचर सेंटर्ड, दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड। सो आई have not necessarily had this problem when I'm teaching. हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में मैं पली बड़ी हूँ, तो स्कूल भी यहीं गई थी, कॉलेज भी, तो जो आपने बताया इस तरह ज़रूर हुआ है कि जहाँ पे क्लास बहुत टीचर सेंटर्ड होती है, and there's only one way exchange of information, and that tends to be very boring. It's not engaging for the student. That's right, that's 100% correct. यही एक एक्चुअली चीज को जो है मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम फील नहीं करते जब हम टीच कर रहे होते हैं या हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। और बड़े अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं कोई बिगनर टीचर्स या जो नॉविस टीचर्स हैं उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रही, ये तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, और उनके भी लेक्चर्स में टीचर सेंटर्ड का जो इशू होता है वो चलता चला जाता है, और उनको खुद को फील नहीं होता कि ये इसको हम डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो लेक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है ये अभी भी ट्रेडिशनल टीचिंग में चल रहा है, और बहुत सी कंट्रीज में ये अभी भी, और बहुत से टीचर्स अभी भी इसको प्रैक्टिस जो है वो करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Samina Naz and Bushra Hassan has to say something. I think. Sure, जरूर। Samina Naz, please आप अनम्यूट कीजिए। और अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। यस समीना, हाउ आर यू? मैम फाइन मैम। फर्स्ट तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी पिछले वीक की क्लास रह गई थी ना, तो वो कहीं से मैं सुन सकती हूँ या कुछ हो सकता है उसके बारे में? ये इस वक्त तो हम एक वर्कशॉप में हैं समीना, तो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स, यू कैन डिस्कस विद साजिद साहब।
Okay, ma'am. I have the responsibility of this workshop. ये Okay, चीजें ma'am. आप Okay. साजिद साहब से कांटेक्ट करना है, ही इज द राइट पर्सन. जी जी मैम, ठीक है, इंशाल्लाह मैं दूसरे सर से बोल साजिद साहब दूंगी. कौन खातून है जो कि कुछ कहना चाह रही हैं? दूसरा आई थिंक बुशरा, मिस बुशरा ने हैंड रेज किया था और अभी तक अब उन्होंने मेरा ड्रॉप थोड़ा कर दिया. सा मेरे सारे आप पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जब आपने कोई क्वेश्चन पर वर्कशॉप से रिलेटेड करना है, देन यू शुड पार्टिसिपेट. ये जो आपके लेक्चर्स का और इस तरह की, ये साजिद साहब इज द राइट पर्सन, क्योंकि वो सारा अरेंजमेंट इस एक्टिविटी को कंडक्ट करने का एट द बैक एंड वो करते हैं. तो वो हमारे इसके इंचार्ज हैं और उन्हीं से आप राब्ता कीजिए. वो अपना हमेशा ईमेल जो है वो उन्होंने अपना दिया हुआ होता है और उसके अंदर भी वो बता रहे होते हैं, जो आपको वो इनवाइट सेंड होती है उसके अंदर भी जब आप रजिस्ट्रेशन करती हैं वहां पे भी उनका कांटेक्ट होता है. ये आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है. चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड बिकॉज वी हैव इम्पोर्टेंट टाइम एंड वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स एज वेल. अच्छा, ये लर्निंग पिरामिड से हम सभी वाकिफ हैं और मोर और लेस सबको पता होगा. फिर भी हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देख लेते हैं कि जब हम बोलना सुनते हैं किसी का तो वो हमारे जहन में उस तरह कायम नहीं रहता और हम कुछ देर बाद भूल जाते हैं. छोटे बच्चे जितनी जल्दी सीखते हैं लेकिन वो उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं. और लेकिन जब हम कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं या हाथ से करते हैं या कोई एक्टिविटी कंडक्ट होती है तो वो चीज हमारे जहनों में ज्यादा देर तक कायम रहती है. और जो बेस्ट वे ऑफ कीपिंग इट विद यू फॉर अ लॉन्ग टर्म मेमोरी इज दैट यू प्रैक्टिकली टीच. पढ़ाना जो है वो एक ऐसा, ना सिर्फ वो एक स्किल है, वो एक आर्ट भी है और आपके साथ वो चीज रहेगी जब आपने किसी को कुछ सिखा दिया. कोई चीज आपको क्लियर नहीं थी, जब आपने खुद सीखी और फिर आपने वो किसी को सिखाई भी, तो दैट विल रिमेन विद यू फॉर लाइफ टाइम. तो मेनली इसका मकसद यही है कि हम पैसिव से एक्टिव की तरफ जाएं और उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होना चाहिए. हम अपने लर्नर्स को एंगेज कैसे करें. एंगेजमेंट जो है वो एक स्किल है और इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंस्ट्रक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये सिर्फ नहीं कहा जा सकता कि जैसे कि बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि जी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमें स्टूडेंट एंगेजमेंट का ज़्यादा चैलेंज आता है, स्टूडेंट बैठते नहीं हैं, आते नहीं हैं, खोलते नहीं हैं. बट आई ऑल थिंक के ऑनलाइन से में भी चैलेंज है और क्लासरूम के अंदर जब आप फिजिकली पढ़ा रहे हैं वहां पे भी स्टूडेंट एंगेजमेंट का चैलेंज है. और लास्ट टाइम वर्कशॉप में ये काफ़ी सारे हमारे साथी जो थे उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की कि उनको क्लासरूम डिसिप्लिन इश्यूज हैं, डिस्ट्रैक्शन के इश्यूज हैं. ये इसी वजह से हैं, उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं बट एंगेजमेंट इज अ चैलेंज. और हर टीचर के लिए स्टूडेंट को एंगेज करना इट्स नॉट दैट इजी. ये कोई एक क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है. यू हैव टू थिंक एंड डू लॉट ऑफ, आपको बहुत सारा सोचना भी पड़ेगा, रिसर्च भी करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि बैकग्राउंड में क्या चीजें हैं जिसकी वजह से मेरी क्लास में ये इश्यूज जो है वो अराइज हो रहे हैं. ये देखें आप, डिफरेंट क्लासरूम्स हैं. एक ये पूरा लेक्चरिंग का क्लासरूम है. इट्स a huge classroom. Lot of participants, students are sitting here and they are mainly all sitting in rows and they are straight looking to the screen. और इसमें से यकीनन बहुत से ऐसे होंगे जो कि फिजिकली तो यहाँ प्रेजेंट हैं बट नॉट देयर, दे आर नॉट देयर मेंटली, दे आर समवेयर एल्स. उनके अपने जहनों में कुछ ना कुछ कहीं और चल रहा होता है या फिर वो आपस में ही लगे हुए होते हैं. जबकि एक एक्टिव एंड एंगेज क्लासरूम में टीचर इज ऑन द साइड, वो तो साइड पे, ये आपस में अपने अपने काम में मसरूफ हैं. ये डिस्कशन हो रही है या कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है उन्होंने या कुछ काम में मसरूफ. तो हर स्टूडेंट को आप देखें कि कोई ना कोई एक्टिविटी वो कर रहा है, कुछ ना कुछ, जो भी इस क्लासरूम में हो रही है. और यहाँ पे आप इस दो पिक्चर्स से अंदाजा लगा सकते हैं कि दीज आर टोटली डिफरेंट सेटअप्स. दिस इज अ डिफरेंट सेटअप एंड दिस इज अ डिफरेंट सेटअप.
लेट्स कंपैरिजन में अगर आप ट्रेडिशनल और एंगेज्ड को देखें तो ये ट्रेडिशनल में हमारा, जैसे रुमीना ने भी कहा, कि मोस्टली टीचर सेंटर्ड होता है, जबकि एंगेजमेंट में आप स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन करेंगे, नॉट पैसिव बल्कि एक्टिव होगी, उसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं बच्चे, कोई इंक्वायरी आपने दी है, कोई डिस्कवर करने के लिए दिया है, कोई रिसर्च करने के लिए दिया है, कुछ खोजने के लिए दिया है, कुछ हाथ से बना रहे हैं कोई बच्चे जो हैं वो आपस में एक ग्रुप में आपने बिठा दिया और उनको कहा कि इसको कंप्लीट करो या इसको ऐसे बनाओ या इसको करो, कोई कलरिंग कर रहा है, कोई बच्चा जो है वो कुछ ड्रॉ कर रहा है। और समटाइम्स टीचर्स ने ऐसे कॉर्नर्स भी बनाए हुए होते हैं क्लासरूम्स के अंदर, एक रीडिंग कॉर्नर है, एक ड्राइंग कॉर्नर है, एक कोई बच्चों का आपस में डिस्कशन कॉर्नर है। ये छोटे बड़े हर एज लेवल के बच्चों के लिए इस तरह आप अपने क्लासरूम के अरेंजमेंट्स को उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। और ये इसमें आप देखें कि दिस इज मोर फोकस्ड ऑन इंफॉर्मेशन डिलीवरी, कि इंफॉर्मेशन बच्चे को दी जा रही है, इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, यानी बच्चा भी आपको कुछ बता रहा है और आप भी उसको कुछ बता रहे हैं। बच्चा आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उसके सवालों के जवाब दे रहे हैं, बच्चा दूसरे बच्चे से सवाल पूछेगा। और इसमें एग्जिट टिकट्स होते हैं और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके जरिए बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। और आपको पता है आजकल मीडिया का दौर है, हर बच्चे के पास, बहुत बच्चों के पास फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बहुत सी और भी चीजें हैं, घरों में उनके कंप्यूटर्स आ गए हैं घरों के अंदर। तो बच्चे, अगर आपने ऐसी उसको इन्फॉर्मेशन देखनी तो वो तो यूट्यूब पे भी जाके देख लेगा, वो इंटरनेट पे देख लेगा, वो आपके पास क्यों आएगा? दैट यू हैव टू थिंक अबाउट कि मैं ऐसा एज अ टीचर या एज एन इंस्ट्रक्टर ऐसा क्या चेंज ला रहा हूँ या ला रही हूँ जिसकी वजह से वो बच्चा खुशी खुशी आपके पास आए, आपसे वो सीखे, आपसे उसे वो बात पता चले जो उसे ना इंटरनेट से पता चली ना यूट्यूब से पता चली। इसमें रिएक्टिव रिस्पॉन्स है, इसमें प्रोएक्टिव है, यानी जो आप बता रहे हैं उसने रिएक्ट किया, कुछ उस पर काम कार्रवाई की, लेकिन यहाँ पे वो प्रोएक्टिव है, वो एंगेज्ड है, काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है। यहाँ पे फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग आ रही है उसके अंदर, क्रिएटिव थिंकिंग आ रही है, लॉजिकल थिंकिंग है, कुछ कैलकुलेशंस आ सकती हैं जैसे साइंस सब्जेक्ट्स में आप मैथमेटिक्स वगैरह में करते हैं, लैब वर्क होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इसमें आइसोलेटेड है, आर्टिफिशियल कॉन्टेक्स्ट है, इसमें ऑथेंटिक है, और रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट है। सिंगल मीडिया इसमें यूज हो रहा है, इसमें मल्टीमीडिया यूज हो रहा है। मल्टीमीडिया से मुराद है आप टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, बीच में आपने कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी रख दी, कोई वर्कशॉप है, आप क्लासरूम से बाहर ले गए बच्चों को, वहां आपने कुछ उनके साथ एंगेजमेंट कर ली। क्लासरूम में कोई और मीडिया आपने इन्वॉल्व कर लिया। देयर लॉट ऑफ मीडियम्स, मीडिया मीन्स not just TV and computer, lot of different mediums you can use and variety you can add to it. Single path progression while it is multi-path यही है कि different तरीकों से आपने वो जो आइडिया या कॉन्सेप्ट है बच्चों को सिखाने का, आपने डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज किए और उसमें मल्टीपल चीजें जो है वो इस्तेमाल की, मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल मीडियम्स। सिंगल सेंस स्टिमुलेशन हैज मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन, यानी आपने इंसान की मल्टी सेंसर, यानी वो सुन भी रहा है, देख भी रहा है, छू भी रहा है, सूंघ भी रहा है। छोटे बच्चे हैं, आपने कोई प्लांट्स या ऐसा कोई आपने टॉपिक दिया तो आपने बच्चों से कहा कि भाई स्मेल करके बताओ कि किस तरह की स्मेल्स हैं, टेक्सचर्स को टच करके बच्चे। तो देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज which a teacher can use and make the classroom engaging and learning environment very interactive. These are two different types of, जैसे मैंने अभी ट्रेडिशनल और वो इसी तरह ये दो लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें एक सुपरफिशियल है और एक डीप लर्निंग है। जो हम डीप लर्निंग के फवायद हैं वो बहुत दूर रस हैं। जैसे कि मैं अपने आप को भी, अगर अपने ऊपर भी कभी रिफ्लेक्ट करूंगा, पहले एक सुपरफिशियल चीज को आपने सीखा, लेकिन अगर आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हुए और आपने उसके अंदर ज्यादा अपने स्किल्स इन्वॉल्व किए तो वो डीप लर्निंग जो है ना वो आपके साथ रहेगी फॉर लाइफ टाइम, जैसे मैंने शुरू में भी बताया। इसमें अगर आप देखें सुपरफिशियल में, इसमें ज्यादा कोर्स वर्क है,
फिर सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है, करिकुलम पे फोकस है, सिलेबस पे फोकस है कि जी सिलेबस ख़त्म कराया जाए, करिकुलम को कंप्लीट किया जाए, और उनके उनके चंद टॉपिक्स हैं उन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं, सवालों के वही टिपिकल जवाब हैं, जी इसको आपने करना है और याद कर लें और कर लें। जबकि इसके अंदर आप देखें तो अब मेनली फोकस जो है इंटरेक्शन है, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन है, आउटकम बेस्ड है। उसमें एक बच्चे को खुद भी एक फीलिंग ये होती है स्टूडेंट को दैट दिस लर्निंग हैज सम पर्पस, ये मुझे किसी वजह से पढ़ाया जा रहा है, इट हैज अ पर्पस एंड इट हैज एन आउटकम दैट provokes the inquiry and investigative skills in the student, और उसमें एक मोटिवेशन फिर पैदा होती है उसको सीखने की, उसके अंदर एक इंक्वायरी का शौक पैदा होता है कि इसमें और भी मुझे कुछ जाके खोजना चाहिए और देखना चाहिए ये क्या टीचर ने जो है वो मुझे ये काम दिया है, लेट्स एक्सप्लोर। क्योंकि बच्चों के माइंड बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो लर्न करना चाहते हैं। अगर आपने उन्हें बनाए हर चीज रेडीमेड दे देंगे तो उसके अंदर से ये जो खोजने की या ढूंढने की जो सलाहियत है जो कि इंसान के अंदर इननेट है, यानी उसके अंदर बाय बर्थ है कि वो ढूंढना चाहता है, खोजना चाहता है, मालूमात करना चाहता है, तो वो आपने उसकी बंद कर दी अगर आपने उसको रेडीमेड सोल्यूशन दे दिया। मसलन जैसे यूजुअली हो रहा है, मैंने खुद बहुत सी ऐसी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स अटेंड की जहाँ पे उन्होंने यही बात बताई कि स्कूल्स में टीचर जाके ये कहते हैं कि जी ये वाला आंसर यहाँ से यहाँ तक आप याद कर लें क्योंकि एग्जाम में यही आएगा आपको। तो उनका आपका फिर मकसद सिर्फ खाली एग्जाम पास करना, तो एग्जाम आफ्टर सम टाइम वो आपका पुराना हो जाएगी, वो नॉलेज वो खत्म हो जाएगी, वो एग्जाम की नॉलेज आपकी हर जगह यूज नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उस बच्चे को दुनिया के साथ कनेक्ट करके वो नॉलेज दी है, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट किया, तो वो नॉलेज उसकी रियल लाइफ में जब वो जाएगा और प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो वो वहां उसको यूज करेगा और उसके लिए अप्लाई होगी वो। लेट्स सी नाउ कि एक्टिव लर्निंग क्या है और एक्टिव लर्निंग किस तरह से इसमें ऐड होती है, जो कि अभी हमने सारी ये बातें की। लेट्स वॉच दिस वीडियो। Active learning refers to a broad range of learner-centered teaching strategies to engage learners as active participants in their learning. This innovative approach is based on evidence from learning science. It explores how we can get more effective learning experiences by giving the learner opportunities to apply, analyze, and synthesize prior knowledge in order to create personal meaning. This can in turn lead to increased knowledge retention, a deeper learning experience, and improved learner outcomes. The educator's role in active learning is key as they make the shift from disseminator of information to facilitator of learning. This facilitation of learning can occur through questioning, discussion, and other structured active learning experiences that enable learners to listen, think, reflect, write, problem solve, and create, while getting clarification and guidance from the educator where needed. Examples of active learning experience include discussion, debate, group work, case studies, simulations, student presentations, team, problem, or project-based learning, and patient encounters, to name just a few. Okay, let's see why active learning. Active learning, we have higher engagement of students. We can use variety of opportunities which we can provide to our learners, as you have seen in the videos, discussions, lot of interactive methods. Higher, you address the higher order thinking. Higher order thinking means कि आप उसको ऐसे चीज़ों में, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना जिसमें बच्चा
के हायर लेवल ऑफ स्किल ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व होंगे, जिसमें एनालिटिकल स्किल हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एप्लीकेशन बेस्ड, फिर वो कुछ इन्वेंटिव और क्रिएटिव जो क्रिएट करने के तरीके हैं, अगर आप लोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से वाकिफ हैं तो उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग आपको बड़ी क्लियरली जो है वो नजर आएगी। और व्हेन they are actively participating, then the students themselves take ownership of their learning. वो उसको own करेंगे and they will feel कि yes, this is my learning, this is what I have learned, ये मेरी मैंने सीखा, ये मेरे उस्ताद ने मुझे आज सिखाया, और वो आपके साथ अभी बेहतर इंटरेक्शन होगा और उनका अपना एक जो सेटिस्फैक्शन है स्टूडेंट की वो हायर लेवल पे चली जाएगी, और दे फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट उसको फील होगा, और जिसकी वजह से स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इम्प्रूव होगा। जब हम ये एक्टिविटीज एक्टिव लर्निंग को यूज करें तो वी हैव टू यूज एंड कीप इन माइंड द डिजाइनिंग फॉर्मेट ऑफ एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज। सो वी नीड टू फोकस ऑन द गोल्स, यानी जो आपके गोल क्या है आपका, यानी what you want your students to know and learn and how do you currently achieve this goal, आप कैसे अभी उस गोल को अचीव कर रहे हैं। अगर आपका टीचिंग का कोई गोल होता है, जैसे आप लेसन प्लान्स बनाते हैं सब, तो उसमें आपके कुछ गोल्स हैं जो आपने डिफाइन किए होते हैं और वो कौन से गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आप क्या मेथड आपने सोचे हैं या क्या तरीके आप करेंगे कि कैसे आप अपने उसको स्ट्रक्चर करेंगे। तो वो these goals need to be very structured, और आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने बच्चों से क्या करवाना चाह रहे हैं और क्यों करवाना चाह रहे हैं। फिर आपकी जो स्ट्रक्चरिंग है आपके प्लान की, आपका जो एक्टिविटी आपने करानी है उसको आपने स्ट्रक्चर करना है कि यू हैव टू टेल स्टूडेंट्स व्हाई दे डूइंग, उसका एक रीजन आपने उनको देना है। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये चीज आइडेंटिफाई की थी कि स्टूडेंट को अपनी एक्सपेक्टेशंस पता हो। अगर आपने शुरू से ही उसको बताया हुआ है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उसके साथ, तो वो अंधेरे में नहीं है, उसको पता है। और you can develop any type of एक्टिविटी शीट बना सकते हैं आप, कुछ भी, बहुत से आइडियाज हैं, रिसोर्सेज हैं, लॉट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल। अब तो इंटरनेट है तो बहुत सी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं, लेकिन हम रिसर्च की आदत नहीं डालते और हम खोजने के लिए खुद कोशिश नहीं करते। जब तक आप खुद एज एन उस्ताद नहीं करेंगे तो आपका स्टूडेंट भी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको देख के सीखेगा। फिर ये कि फीडबैक, और आई थिंक फीडबैक एक ऐसी चीज है जो कि हर इंस्ट्रक्टर को बहुत हेल्प करता है। तो आप पीयर्स का आपस में भी फीडबैक, स्टूडेंट से फीडबैक लेना, उनके पेरेंट्स से फीडबैक लेना, फीडबैक देना, दिस इज अ वेरी वेरी हेल्दी एक्टिविटी एंड ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो फीडबैक को अपने प्रैक्टिस में लाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और आप फीडबैक जब क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको फीडबैक लेना चाहिए, और ये प्रैक्टिस अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करनी है कि आपने उनसे फीडबैक लेना है और उनको भी फीडबैक देना है। फीडबैक लेने के बहुत से तरीके सिंपल भी हो सकते हैं। आप ओरल फीडबैक्स भी ले सकते हैं, आप बच्चे से पूछ सकते हैं, मैंने आपको ये समझाया, क्या आपको समझ आया? तो बच्चा आपको हाथ खड़ा करके बताएगा या बोलेगा या किसी ना किसी तरह वो फीडबैक देगा कि जी मुझे समझ आई है या मुझे नहीं आई। तो ये फीडबैक, इसी तरह इंटरेक्शन भी डेवलप होगा, बच्चा सवाल पूछेगा, आप सवाल पूछेंगे, एंड दैट्स हाउ द स्टूडेंट्स आर मोर एंगेज। लेकिन वही जैसे मैंने शुरू में बातें कही कि खाली इंफॉर्मेशन नहीं देनी बल्कि इंटरेक्शन को प्रमोट करना है, दैट इज एक्टिव लर्निंग। अब इसमें एंगेजमेंट की ये 3 मेन एरियाज जिसको हम कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन, यानी व्हाट हाउ इंडिविजुअल ग्रुप एक्टिविटीज आपकी बनेंगी, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे, डूइंग, ऑब्जर्विंग, सिमुलेशंस, रोल प्लेइंग, कुछ भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन और आइडियाज इन 3 तरीकों से हम शेयर कर सकते हैं। फेस टू फेस हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है और ब्लेंडेड भी हो सकता है, यानी उसमें ब्लेंडेड में फेस टू फेस और वर्चुअल दोनों मिक्स्ड है।
लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। अब ये आप एक्टिविटी आपने अभी क्लास में ही करनी है इस वक्त, और ये मैंने इंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पे दे दिए। यू हैव टू डिजाइन अ काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट मैप, जिसमें आपने अपने टीचिंग चैलेंजेस जो कि आपको इंगेजमेंट के हवाले से आते हैं क्लास में, वो आपने अपने इस तरह का एक माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप बना के ड्रॉ करके और अभी आप शेयर करेंगे क्लास में ही। तो आप अपना पेपर पेंसिल निकाल लें और आपके पास 10 मिनट्स हैं, और इस 10 मिनट्स में आप ये ड्रॉ करेंगे, और इसकी एक पिक्चर भी खींच के आप जो है वो दिखा सकते हैं। आप अगर बेशक आप अपने फोन पे हैं, डजंट मैटर, आप अपने फोन का भी कैमरा खोल के पेपर रख के अपने फोन के कैमरे से भी आप वो दिखा सकते हैं, और कि मैंने ये माइंड मैप जो है ये बनाया। तो ये आप सबको बनाना है। ये आप अपने कागज पेंसिल ले लें, ये मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप गूगल ड्राइंग्स यूज करके बना लें, MS पेंट का आपको आता है तो पेंट से कर लें, वो नहीं कर सकते कागज पेंसिल है, कागज पेंसिल से कर लें, और फिर ये आप अपने शेयर करेंगे। और अगर आप इस वक्त शेयर नहीं कर सके तो आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे पिक्चर भी इसकी खींच के भेज सकते हैं साजिद साहब को, वो फिर मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये आपकी अभी की एक्टिविटी है फॉर 10 मिनट्स, और मैं भी अपने आप को जो है वो म्यूट करूंगी।
जी, इज देयर एनीवन हु वांट्स टू शेयर, या फिर हम एंड पे शेयर करेंगे आप लोग? जी, ये कामरान खालिद साहब का मुझे मिला है। इट्स ग्रेट, बड़ा अच्छा आपने, और आई थिंक ये बड़े कॉमन वो हैं आपके। किस स्कूल से आपका ताल्लुक है कामरान साहब? जी मैम, मैं एक गवर्नमेंट टीचर स्कूल में ना बतौर हेड टीचर काम कर रहा हूँ। ओके, चलें, आपने अच्छा व्हाट्सएप कर दिया। जो लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं वो व्हाट्सएप कर दें साजिद साहब को, वो मुझे फॉरवर्ड कर दे, हो जाएगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप अपनी उसी वो जो कागज पे आपने ड्रॉ किया है उसकी आप पिक्चर लें और आप अपने फोन के कैमरे से और वो सेंड कर दें साजिद साहब को व्हाट्सएप पे। और अगर कोई लैपटॉप पे है और वो लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप लोग, आपको आती है तो आप बता दें, तो आपकी आप स्क्रीन शेयर हम करते हैं। जैसी वर्कशॉप एंड होगी हम आपको मौका देंगे, तो आप अपने अपने जो ये माइंड मैप्स आपने या कॉन्सेप्ट मैप्स बनाए हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, साजिद साहब ने अपना नंबर भी आपको मैसेज में शेयर कर दिया है, तो आप इसके ऊपर जो है वो अपना सेंड कर सकते हैं पिक्चर खींच के। बट इट इज एसेंशियल, क्योंकि फिर आगे कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी, प्रोजेक्ट दूंगी, जो आपने करना है ओवर द वीक। और नेक्स्ट जो हमारी इंशाल्लाह वर्कशॉप होगी उसके अंदर हम वो जो है वो उसको परसू करेंगे। साजिद साहब, आर द 10 मिनट्स ओवर? मैंने टाइम नहीं कैलकुलेट किया था, तो
आई थिंक जी मैम, ऑलमोस्ट हो गए। ठीक है, तो आप लोग अपने 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 पास रख लें रेडी करके अपने, और अगर आप पिक्चर खींच के सेंड करना चाहते हैं वो उस तरह कर लें। एंड में हम जो है वो जब हमारा इंटरैक्टिव टाइम आएगा तो हम आपके जो है वो उसको हम शेयर करेंगे अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ। ये आपकी एक्टिविटी हो गई। अच्छा, इसमें अब मैं आपको एक असाइनमेंट जो है वो असाइन करूँगी, और इसमें आपने जो एंगेजमेंट है उसको टारगेट करना है कि एंगेजमेंट थ्रू एक्टिव लर्निंग आप कैसे करेंगे। और इसमें ग्रेडिंग होगी, दिस विल बी अ ग्रेडेड असाइनमेंट होगी जो कि नेक्स्ट सेशन में आपने करनी है। इसका मैं आपको एक टूल भी दूंगी अभी जिसके ज़रिए आप अपनी असेसमेंट जो है वो खुद करेंगे। तो इसमें the steps which you are supposed to use is you have to plan for an active learning activity in your class. पहला स्टेप जो है इसका वो आपने एक प्लानिंग करनी है, उसको प्लान करें कि कौन सी एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया आपके गोल्स होने चाहिए, उसके अंदर आपने कैसे स्ट्रक्चर करनी है वो एक्टिविटी, वो कैसे कंडक्ट होगी आपकी क्लास में, उसके लिए क्या तरीका होगा, उसके लिए आपको कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ये सारा प्रेपरेशन जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आएगा। आपने वो सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज गैदर करने हैं। अगर आपने कोई एक्टिव लर्निंग एक्टिविटी क्लासरूम में करानी है, क्लास के बाहर करानी है, कहीं बच्चों को लेके जाना है, तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स या रिसोर्सेज हैं वो आपने सारे कंडक्ट कर। अगर क्लासरूम में ही करानी है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या सामान चाहिए, कोई मीडिया चाहिए, कोई वर्कशीट चाहिए, उसके लिए जो भी चीज़ें, दैट इज़ द प्रेपरेशन स्टेप। और नेक्स्ट इज़ द एविडेंस। तो अपने जब ये आप सारा कुछ करेंगे, ये एक्टिविटी होगी आपकी क्लास में, तो आप अपने कोई भी स्कूल का जो आपके पीयर हैं, साथी हैं, दूसरा टीचर है, उनको आपने ये कहना है अपना फ़ोन देकर के वो एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उस एक्टिविटी की जो आप कर रहे हैं क्लास में, और वो एक्टिविटी की जो वीडियो है वो आप हमारे साथ जो है वो शेयर करेंगे। यानी वो एक्टिविटी की वीडियो आप दिखाएंगे कि जी मैंने ये एक्टिविटी क्लास में करवाई और ये हुआ और ऐसे ऐसे मैंने करवाई, ये मेरे वो थी वो, और उसका जो प्लान है वो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे। उस प्लान को बनाने की भी मैं एक टूल आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने इस तरह ये एक्टिविटी कंडक्ट करनी है। ये आप नोट कर लें, चाहे तो आप स्टेप्स अपने पास लिख लें, वरना ये आपको रिकॉर्डिंग भी हम जो है वो हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी ले सकते हैं, वरना आपको मैं ये इसका स्क्रीनशॉट भी साजिद साहब को सेंड कर दूंगी, वो आपके साथ जो है वो शेयर कर लेंगे कि ये एक्टिविटी के स्टेप्स क्या हैं, ये कैसे कंडक्ट आपने करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एंड दिस विल बी ग्रेडेड, इसके ऊपर आपको एक ग्रेड असाइन होगा। और फ्यूचर में जितनी भी अब हम वर्कशॉप्स करेंगे उसमें एक उसकी ग्रेडिंग आपकी एक्टिविटी की होगी, उसको हम मेजर करेंगे और उसके ऊपर एंड ऑफ द मंथ जो है एंड ऑफ द क्वार्टर जो है, यानी आफ्टर 3 months एक रिवॉर्ड जो है वो उसके साथ अटैच होगा। वो रिवॉर्ड अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो कोई ना कोई, नॉट जस्ट सर्टिफिकेट बल्कि उसके साथ एक रिवॉर्ड भी हम अटैच करेंगे जो कि उस टीचर को मिलेगा, और वो अनाउंस किया जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर भी और हमारे चैनल के ऊपर भी और वर्कशॉप में भी। तो ये आपके लिए वो है। एंड देन दोज टीचर्स हुज वर्क विल बी एक्सेलेंट और वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, तो वो हमारे टीचर ऑफ विजडम का जो प्रोग्राम है उसकी पार्टिसिपेंट बन जाएंगी, और उसके भी आगे स्टेप्स हैं जिसमें वो आगे चलते चले जाएंगे। तो ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है ओवर द वीक, आपका टाइम है आपके पास, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको असेस भी करेंगे और हम शेयर करेंगे। और ये जो असेसमेंट है, ये एक टूल जो मैंने डिजाइन खुद किया है, रूब्रिक आपका, उससे मैं आप असेस करेंगे। और आपने आई थिंक अगर नाम नहीं सुना रूब्रिक का, रूब्रिक इज अ सेल्फ असेसमेंट टूल, और ये आप बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और बड़ों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और रूब्रिक्स आर एविडेंस बेस्ड ऑथेंटिक असेसमेंट टूल, और आप उसको
डिज़ाइन भी कर, बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, बहुत से रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं फ्री, जिनको आप यूज़ करके रूब्रिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं. सो यू यूज़ अ सेल्फ असेसमेंट रूब्रिक, अपने उसको आपने खुद असेस करना है अपने काम को. मेरे यहाँ पे मैंने एक ये भी इसका शेयर कर दिया डॉक्यूमेंट जो है इसका रूब्रिक का, उसकी मैंने ये यहाँ पे आपको यहाँ दिखा दिया है, और मैं भी आपको दिखा भी दूंगी. और ये आप डाउनलोड करेंगे, ये मैं रूब्रिक जो है ये साजिद साहब को सेंड कर दूंगी, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे. और नेक्स्ट सेशन में आप अपना असेसमेंट, अपनी ऐसी एक्टिविटी का ये जो असाइनमेंट मैंने आपको दी है, इसको आप खुद ही असेस करके और डिटरमिन करेंगे कि आप कहाँ तक उसमें कामयाब जो है वो हुए हैं, और फिर उसके हिसाब से आपकी असेसमेंट होगी, और वो हमारे फैल्कनरी प्लेटफॉर्म और सब जगह जो है वो शेयर होगी, और आप अपने स्कूल में भी शेयर कर सकते हैं. दैट्स द एंड. थैंक यू वेरी मच. तो अब हम इसको जो है वो एंड करते हैं, और अब आपकी बारी है कि आपने अपनी जो एक्टिविटी डिज़ाइन की है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे. अच्छा, एक मैं आपको ये तो टूल भी दिखा दूं. सॉरी, ये जो है ये एक एक्टिव लर्निंग का डिज़ाइन करने का एक टूल है, लेसन. और इसके अंदर जो है ये सारी आपने फिल कर सकते हैं इसको आप, और ये बड़ा अच्छा आपके लिए हेल्पफुल होगा. इट्स अ 2-page डॉक्यूमेंट, सिंपल येट इट इज़ वेरी यूजफुल. तो आप अपनी एक्टिव लर्निंग का जो लेसन प्लान है वो इस टूल को यूज़ करके बना सकते हैं. ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये यूज़ करें, कंपल्सरी नहीं है. आप अपनी मर्जी का कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हैं. अपना जो लर्निंग एक्टिविटी आपने डिज़ाइन करनी है, असाइनमेंट डिज़ाइन करना है, प्रोजेक्ट, उसके लिए ये एक हेल्प है आपके लिए. अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये जो हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर ये है, मैं इसको कोशिश करती हूँ कि दिखा दूँ. दिस इज़ द रूब्रिक जो कि मैंने डिज़ाइन किया है आपके लिए. इसमें आप देख लें हमारे हर लेवल के इसमें आपकी जो एंगेजमेंट है, यानी आपने पार्टिसिपेशन जो है वो आपकी इस असाइनमेंट के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी मेजर्ड. हाउ मच एंगेज यू वर और यू विल गोइंग टू बी इन दिट, कैसे आपने एंगेज रहे आप इसमें. असाइनमेंट की प्रेपरेशन आपने किस लेवल पे की और क्या क्या किया, और इसमें प्लस आपका जो प्रोजेक्ट या असाइनमेंट की क्वालिटी है उसको भी देखा जाएगा. उसमें क्रिएटिविटी और असाइनमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो आपने मीट की. जैसे वो मैंने आपको 3 स्टेप्स दिखाए, प्लान, प्रिपेयर एंड एविडेंस, वो आपने सारे मीट किए या नहीं किए. उसके रिसोर्सेज आपने जो हैं वो यूज़ किए नहीं किए, और उससे क्या आपकी कुछ टीचिंग के अंदर कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये भी आप इनके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें जो है ये मेजर होंगी. आइदर यू आर एट द बिगनर लेवल, नोविस हैं, प्रोफिशिएंट हैं, या एडवांस लेवल का आपने परफॉर्मेंस दी है. दिस इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रूब्रिक विच आई विल बी सेंडिंग टू साजिद साहब. एंड आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी है, लेकिन प्रेजेंटेशन की हम कॉपी जो है वो इसमें नहीं सेंड करते, वो रिकॉर्डिंग आपको जो है वो मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर. तो ये मैंने आपको रूब्रिक का भी दिखा दिया है. और अब हम जो है वो आपका जो भी जिसने वो किया है अपना, वो आप शेयर कर सकते हैं. और ये हमारे चैनल का भी लिंक जो है वो साजिद साहब ने शेयर किया है. सो हु वांट्स टू प्रेजेंट एंड शेयर देयर कॉन्सेप्ट मैप. अब आपकी बारी है. मैम आई एम सॉरी, एक मिस समीना खान है, उन्होंने लेट ज्वाइन किया था, तो वो असाइनमेंट जो अभी आपने बताई हैं, अगर आखिर में दोबारा आप इसको थोड़ा असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट का देखें, वो जो प्रेजेंट जब ये रिकॉर्डिंग होगी ना इसके अंदर इनसे शेयर, तो ये वहां अपनी असाइनमेंट को देख सकती हैं. जी अच्छा जी, जो रिकॉर्डिंग, हाँ, हमारी चैनल पे ये रिकॉर्डिंग चली जाएगी. आप वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग जो है इसकी देख सकते हैं प्रेजेंटेशन की. और मैं कोशिश करूंगी कि अगर ये जो इसका स्क्रीनशॉट है ना असाइनमेंट का, वो मैं साजिद साहब को व्हाट्सएप कर दूंगी.
वो आप सबको भेज देंगे कि असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रूब्रिक भी आपको सेंड हो जाएगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। जी माजिद महमूद जी जी सर। Can I share my screen? Of course, we are waiting. Okay, Yes, okay, please. thank you. So, can you see my screen? जी मुझे आ रही है, यस बिल्कुल नजर आ रही है, इसको एनलार्ज कर लें। All right. Very good, yes. जी So सर। this one. So as per my understanding, so my teaching challenges are like keeping student motivated, delivering the right concept, achieving the goals within the time, because we need to cover the syllabus and everything as well. So the media that I am thinking to use is like video clips for visual understanding, because visual is more easy to understand, and whiteboard as well, for to make them understand what is in my mind, because in words maybe I am not able to express all these things that I have. So definitely body language will be there. So learning resources are the material presented on the internet, and some specific material that is like provided by school, or like some as Falcon Wisdom Foundation is providing. So to keep the class discipline, I would tell the students that okay, this punishments or penalties may be there in case they are not disciplined, and like encouragements or this kind of things can be offered as well, that keep them motivated. Okay, if they will be disciplined, we can say that this is the day of the student, like this kind of things we can to motivate the student. And to engage the student, I will ask the questions, and I will also introduce some activities like what to do, so that they will do something, and in that manner they will be engaged. So that's all. Very good, well done, excellent job. माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया। और ये these are very common challenges। एक बात तो ये बता दूं माजिद साहब, ये आपके challenges नहीं है, we are all in the same boat। ये मोस्ट ऑफ द टीचर्स के चैलेंजेस होते हैं। क्लासरूम डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी हैं, ये सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। ये मैं खुद स्कूल्स के साथ अटैच्ड हूँ, यहाँ पे काम करती हूँ उनके साथ, तो ये है प्रॉब्लम। और ये मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो है वो इसको फेस कर रहे होते हैं। मोटिवेशन नहीं है, डिलीवर करना राइट कॉन्सेप्ट। तो इसमें थोड़ी सी ये चीजें कंसिडर आप कर सकते हैं। एक तो जैसे जब आप क्लास के बच्चों को आप क्लेरिफाई करें, जैसे मैंने ड्यूरिंग अपनी वर्कशॉप में भी बताया कि बच्चों को उनकी एक्सपेक्टेशन जरूर पता होनी चाहिए। अगर उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं पता कि उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, तो वो तो आप इस तरह समझे ना कि आपने उसको अंधेरे में रखा और उसको नहीं बताया कि वो उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो फिर वो तो बच्चे को नहीं पता। तो आप अगर उस एक्सपेक्टेशंस बताएंगे, और वो बड़ा अच्छी टेक्निक होती है, आप क्लास में लिख के लगा दें, बोर्ड में लगा दें, कलर में लगा दें, कहीं ना कहीं उन्हें बता दें, उन्हें सेंड कर दें, व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें। अगर वो आपके साथ कनेक्टेड हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप क्लासरूम में उन्हीं से बनवा लें, बच्चों से ही बनवाएं कि भाई कौन से रूल्स होने चाहिए, कौन सी अच्छी बातें होनी चाहिए जो हमारे क्लास में होनी चाहिए। आप देखें वो खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे, और जब वो खुद रूल्स डिटरमिन करेंगे तो फिर वो उसको फॉलो भी करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा आपने शेयर किया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ कौन अपनी स्क्रीन शेयर करेगा? इज देयर एनीवन एल्स? मैम मैं अगर कामरान साहब का जो असाइनमेंट थी वो मैं शेयर कर दूं अपनी स्क्रीन से? जी जरूर करें प्लीज। यस प्लीज, यस कामरान साहब, इज दैट ओके जी? जी सर। जी जी
अच्छा, तो इन्होंने कहे कि लैंग्वेज बैरियर, क्लास डिसिप्लिन, डिजिटल स्किल्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स यानी न्यू टीचिंग टेक्निक्स नॉट अडॉप्टेड। कामरान साहब ने जैसे कहा ना कि वो एक गवर्नमेंट के स्कूल इदारे से के साथ उनका लिंक है, तो बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए हैं कामरान साहब। बिल्कुल ये चैलेंजेस हैं। लैंग्वेज बैरियर से मेरा आपसे सवाल है कि आपकी क्या मुराद है यहाँ लैंग्वेज बैरियर से? किस तरह आपको लैंग्वेज बैरियर है या आपके स्टूडेंट्स को लैंग्वेज बैरियर है? जैसे हमारे यहाँ ना सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम के हवाले से ना काफी मसाइल का सामना है। देहाती इलाके हैं और वहाँ बच्चे ना अंग्रेजी अब छोटी अब आपने शायद देखी हो एसएनसी की जो नई किताबें आई हैं उसमें क्लास 1 के अंग्रेजी के एक सबक में कोई 16 से लेकर 20 एक्टिविटीज है एक ही सबक में, और मतलब बहुत ही ज्यादा, यानी कि उसको, हालांकि हमारे यहाँ क्योंकि सरकारी स्कूलों में ना 2 ग्रेड होते हैं, एक कच्ची यानी कि जो फर्स्ट नर्सरी जिसे हम कहते हैं, उसके फौरन बाद बच्चा ना क्लास 1 में चला जाता है। ठीक, यानी कि जो ABC या बे सीख कर ना फौरन वो, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में 3 ग्रेड्स होते हैं, प्रेप, नर्सरी या उस तरह के, फिर जाके आगे पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह जब अंग्रेजी मीडियम फौरन अले बे जीम या ABC सीख कर फौरन ही उसको आप लंबे लंबे जुमलों पर या इतना इस तरह की एक्टिविटी पर, और वो भी अंग्रेजी में, जो कि बच्चा भी लैंग्वेज सीख भी नहीं रहा, उसको सीख भी नहीं सका। तो ये हमारे यहाँ बड़ा मसला है, खास से सरकारी स्कूलों में और सरकारी जो रिमोट एरियाज हैं या देहाती स्कूलों में। तो ये मेरी मुराद वो है कि ये अच्छा, तो वो जो ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। तो वो जो एसएनसी का आप कह रहे हैं वो सारी 15 या 16 एक्टिविटीज वो उन्होंने क्या ये भी कहा है कि ये सारी की सारी क्लास में करवाई जाए या उसमें से आप कोई पिक एंड चूज कर सकते हैं? उसमें हमारे जो सरकारी असातिज़ा हैं वो उसको देख ही नहीं रहे, उसको समझ ही नहीं रहे। मैं खुद एक सरकारी स्कूल का हेड हूँ, तो वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं इन 6-7 माह में मैंने उनसे कई दफा इंटरेक्ट किया, क्या आपने इसको खुद पढ़ा है कि ये क्या सिखाना चाह रहे हैं या बच्चों को? तो वो नहीं पढ़ा रहे उसको, या नहीं उसको समझ पा रहे, या समझना तो चाह नहीं रहे। ये तो अभी क्योंकि वो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो वो एवरीथिंग टेक्स इट्स टाइम, एक तो बात ये है। और एजुकेशन में जो है ना, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती, ये तो आप बात समझ लें और ये याद रख लें। कोई भी देखें, नस्ल को बदलने में या किसी चीज को चेंज करने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है, और मेजॉरिटी लोग तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि जी चेंज होने की जरूरत भी है। मोस्टली तो वो रेजिस्ट ही कर रहे होते हैं कि नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ चेंज, जैसे चल रहा है बस इसको ऐसे ही चलने दें। दे आर लाइक दैट। तो जो चेंज का फैक्टर है वो आसानी से इम्प्लीमेंट नंबर 1 तो होगा नहीं, नंबर 2 इट विल टेक इट्स ओन टाइम। एसएनसी आ गया है, प्लस ये कि एसएनसी जो है मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है और देखा भी है, और मैं उसको देख रही हूँ। तो एसएनसी जो है ना वो इट्स अ फॉर्मेट, वो लेकिन कोई पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा स्कूल उसकी बुनियाद पे चल पड़ेगा। वो उन्होंने एक फ्रेमवर्क दे दिया है आपको कि आप अपने हिसाब से इस फ्रेमवर्क के अंदर रह के काम कर सकते हैं। वो जैसे पहले आज़ादी थी वो नहीं है कि आपने जो भी सिलेबस लगा लिया या वो कर लिया। तो इस वक्त एसएनसी हमारा टॉपिक तो नहीं है हाँ डिस्कशन का, लेकिन ये चीज़ें सब, ये जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, मेन मकसद जो है वो बच्चे को एंगेज करना है। अगर वो एंगेज नहीं है तो वो लर्न नहीं करेगा। पैसिव लर्निंग से वो वक्ती तौर पे तो शायद आपकी इंफॉर्मेशन चली जाए, लेकिन वो रिटेन नहीं होगी उसके दिमाग में, और वो थोड़ी देर सीखेगा और उसके बाद वो भूल जाएगा, स्पेशली छोटा बच्चा। तो उसके लिए मेथड्स डिफरेंट हैं, टेक्निक्स हैं, उसको एक्सप्लोर करने की, वो करनी। इसमें क्योंकि आप एक जिम्मेदारी वाले रोल पे हैं, तो आपको पहले ये खुद अपने लिए प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप अपने असातिज़ा को भी इसके ऊपर जो है वो ला सकते हैं। जी, और कोई हमारे साथ अपना दिखाएगा, अपना शेयर करेगा? हमारी लेडीज जो बैठ हैं, इतनी सारी टीचर्स इस वक्त पार्टिसिपेशन में हैं, तो उनमें से कोई, हमारी लेडीज में से कोई अपना कॉन्सेप्ट मैप शेयर करना चाहेगा, बनाया अगर आपने किसी ने,
आप अपने फोन से अगर स्क्रीन शेयर बेशक कर लें, अगर लैपटॉप पे आप लोग नहीं हैं तो। नो प्रॉब्लम कामरान साहब, यू आर मोस्ट वेलकम। जी साजिद साहब, अगर कोई और नहीं है और कोई मैसेज है तो आप लोग चैट में, कोई सवाल है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर और फिर इंशाल्लाह हम इस सेशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन जैसे मैंने बताया है कि आप हमारा इंटरेक्टिव असाइनमेंट के ऊपर हम बात करेंगे और आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और शेयर करेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह आपने इस चीज को अपने यहाँ कोशिश की करने की, और वो वीडियो बनानी है आपको उसकी, ताकि हम देखें कि आपने जब वो एक्टिविटी करवाई तो वहाँ क्या सिचुएशन थी, और आप भी आपकी जो लर्निंग होगी उससे, देन यू विल अप्लाई दैट एक्टिव लर्निंग इन योर ओन क्लासरूम इंशाल्लाह। जी जरूर, बहुत शुक्रिया कामरान साहब, जरूर करवाएं, आप ये यूज करें और आप करवाएं तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आपने इसको अपने स्कूल में अप्लाई करवाया। सो इफ देर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल बी इंशाल्लाह एंडिंग इट जस्ट फ्यू मिनट्स। मैम अभी वो मिस यास्मीन हैं, उन्होंने एक्टिविटी शेयर की है, तो मैं अपनी स्क्रीन से शेयर कर जी देता जी हूँ। जरूर जी। यास्मीन हबीब जो है हमारे साथ इस वक्त, ये मुझे नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, यास्मीन हबीब। जी मैं अभी आपको बता देता हूँ। जी जी जरूर 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 दिखाएं आप। सॉरी, उन्होंने आपको व्हाट्सएप किए? जी मैम। ओके ओके। डायग्राम बनाई है इसमें इन्होंने? दोबारा मैंने देखी नहीं। ओके, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, आस्क फ्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टीचिंग चैलेंजेस, क्लास एज यूनिट, ये डेकोरेशन शायद वर्ड यूज किया है, बेस्ट वे क्लास डिसिप्लिन फीडबैक मस्ट। ओके, एक्चुअली समीना, हम जो कॉन्सेप्ट मैप है ना उसकी आपको डायग्राम के फॉर्मेट में बनाना है। जैसे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई, कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं उसको, दैट्स ऑल्सो। ये कॉन्सेप्ट मैप आप अपने क्लासरूम के बच्चों से बनवा सकती है। ये जो एक्टिविटी मैंने शेयर की है आपके साथ, इसका मकसद ये कि आपको ये एक्टिविटी करना सिखाना है। तो आपने यही कॉन्सेप्ट मैप अपने बच्चों से बनवाना है। अब आप इसकी वर्कशीट भी बना सकती हैं कि आप एक ड्रॉ करके, और वरना आप उनको बोर्ड पे भी एक ड्रॉ करके दिखा दें कि ये इस तरह का है, और बाद में उनसे कहें कि वो खुद अपने अपने, उनको एक ब्लैंक शीट दे दें और वो ड्रॉ करके उस पर खुद बना के आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपने उनको कॉन्सेप्ट मैप बनाना सिखाना है, रैंडमली नहीं वो बना पाएंगे, वो आपको प्रॉब्लम होगी। पहले आपने उनको सिखाना है कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैप, ये किस लिए यूज होते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो पहले आप एक एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट मैप उनको दिखाएंगी, और फिर उनसे कहेंगी कि इसी तरह का कोई एक टॉपिक देके उसका कॉन्सेप्ट मैप बनाओ, तो वो बच्चे खुद बनाएंगे और इस तरह वो सीखेंगे। तो आपने डायग्राम ही बनानी थी, लिखने का तो काम हम कर ही लेते हैं, दैट वाज नॉट द पर्पस। और जब भी आप बनाएं तो कॉन्सेप्ट मैप को एज वन ऑफ द मेथड जो है वो आप एक्टिव लर्निंग की एक मेथड टेक्निक है जो आप यूज कर सकती हैं अपने क्लास में। जी, और कोई है हमारे साथ जो शेयर करना चाहेगा? रोमीना ने, आपने कुछ शेयर करना है रोमीना?
have you used any of this resource? जी, we use this all the time. हमारी क्लासेस सब लर्नर सेंटर्ड ही होती हैं और मैं खुद जो है वो टीचर्स को ट्रेन करती हूँ. तो आप मुझे सिर्फ एक सवाल थोड़ा सा था, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो ये कि इसमें अभी जो आपने जो एक्टिव लर्निंग सिखाया, विच इज ऑब्वियसली स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम, तो इसके मतलब एज एन अटेंडी मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था कि इसको इसकी मिसालें मैं और जानना चाह रही थी आपसे, जस्ट एज एन अटेंडी. आई मीन आई नो व्हाट इट इज, लेकिन ये कि मुझे सिर्फ ये सवाल आपसे करना था कि क्या ये ऑनगोइंग क्लासेस हैं कि इन लोगों को मालूम है कि क्या है, और जस्ट फॉर माय ओन इंफॉर्मेशन. किन लोगों के बारे में आप पूछ रही हैं? जो हमारे पार्टिसिपेंट जो अटेंडीज हैं जी, वो रेगुलर अटेंडीज हैं आपके? जी, ये जो हमारे अटेंडीज हैं, देखिए हमारा वीकली वेबिनार कंडक्ट होता है. अच्छा. फैल्कन विजडम फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, और स्कूल ऑफ विजडम का एक प्रोजेक्ट है. अच्छा. जो पूरा हमारा सिस्टम है, दैट इज डिजाइन्ड बाय मी. बेसिकली उसकी डायरेक्टर मैं हूँ और मैंने ही ये सिस्टम डिजाइन किया है. एक स्कूल में कैसे ये इनकलकेट होगा, उसका एक वन ऑफ उसका जो ये पार्ट है वो ये वेबिनार होता है. अदरवाइज वी हैव अ होल सिस्टम दैट इज फॉर स्टूडेंट्स. हमारे सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये वाला जो है स्कूल ऑफ विजडम का जो प्रोग्राम है, ये उसको मैं कर रही हूँ. और उसके लिए हमने टूल्स भी बनाए हैं, उसकी प्रॉपर मेजरमेंट है, वो पूरा स्कूल, क्योंकि हमारा जितना भी फैल्कन विजडम का कंटेंट है, that is going through will be delivered through our learning management system, which is our own customized LMS by the name of Falconry Solutions. अच्छा. तो अगर आप अपना ईमेल शेयर कर देती हैं साजिद साहब के साथ, वो मुझे सेंड करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वी विल कीप यू इन द लूप. और आप हमारा हर सैटरडे को इसी टाइम पे एक वेबिनार कंडक्ट होता है विद डिफरेंट टॉपिक्स. उसमें आप आ सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं. किसी और को भी आप साथ आगे लाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, वी विल बी हैप्पी. ये कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से एक इवेंट होता है. बाकी ये कि हमारा प्रोग्राम है जो कि स्कूल अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी स्कूल के लिए, प्राइवेट हैं या जो भी मिडिल लेवल स्कूल्स हैं जहाँ पे छोटी एक फीस भी होती है. एक तो वो स्कूल्स हैं ना जो कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, प्राइवेट स्कूल्स, उनके तो अपने ऑलरेडी उन्होंने अपने, दे आर नॉट आवर टारगेट ऑडियंस. हमारे टारगेट ऑडियंस वो स्कूल्स हैं जो कि एक तो इस पे फोकस्ड हैं कि उनकी एकेडमिक क्वालिटी भी अच्छी हो, एट द सेम टाइम बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से उसमें डेवलपमेंट की जाए, और स्किल डेवलपमेंट का हमारा प्रोग्राम है. बच्चों में वो स्किल्स इनकलकेट किए जाएं और परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग या हाई पोटेंशियल लर्नर उनको कैसे बनाया जाएगा, इसका हमारा एक्चुअली पूरा एजेंडा, आइडियोलॉजी और प्रोग्राम है. मैं कुछ ही दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारा एक पूरा ओरिएंटेशन सेशन है, वो भी मैं शेयर करूंगी. उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. आप उसको जब देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है, हम क्यों ये कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है, और ये स्कूल को किस तरह हेल्प करेगा. इसमें स्कूल भी इन्वॉल्व होगा, इसमें पेरेंट्स बच्चों के इन्वॉल्व हैं और इसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं. स्टूडेंट ऑफ विजडम का एक अलग प्लेटफॉर्म है, टीचर ऑफ विजडम भी एक प्लेटफॉर्म है, और स्कूल ऑफ विजडम है, फैमिली ऑफ विजडम का प्रोग्राम है. हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए भी हमारे पास कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स हैं. But everything is delivered through our learning management system, which is Falconry Solutions. उसकी ऐप iOS के लिए भी है और Android के लिए भी है. तो वो फोन से भी चलता है और आप अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप उसके ऊपर भी. तो हमारा कंटेंट इज ऑल e-learning content. Since I have this certification and I am specialized in e-learning content designer. I'm an instructional designer qualified from United States. तो मैंने ही वो सारा कंटेंट जो है वो डिज़ाइन किया, बनाया, लेकिन जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इमरान सादिक साहब, मेनली वो और मैं दोनों मिलके इसको पूरे प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं. तो यू आर मोस्ट वेलकम. आई विश कि आप हमारे साथ ज़रूर इसमें रहें. और सिंस यू आर ऑल्सो अ टीचर ट्रेनर,
और अपनी जो वो हैं, आप अपना प्रोफाइल भी हमारे साथ शेयर करें. We might invite you as a speaker at some point. Inshallah, we will try that. कि हम आपको इन्वॉल्व करें किसी ना किसी काम में. हमें खुद अच्छे काबिल लोगों की जरूरत होती है. तो नाइस मीटिंग यू रुमीना. नाइस मीटिंग यू टू. बहुत शुक्रिया. और मेरा ईमेल जो है जब मैंने रजिस्टर कराया था तो आई थिंक सादिक साहब जो उनके पास आ चुका होगा. ओके, I will ask from Sajid Saab to share that with me. And you are right now in US. जी, I am. Yes. And you are in New York. I'm actually in Wisconsin. Wisconsin में. अच्छा. जी. I am in Virginia actually. अच्छा. Okay. Wonderful. चले इंशाल्लाह आपसे राब्ता जरूर रहेगा. बहुत शुक्रिया. All right. Thank you जी. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज. Thank you very much. Okay, thank you all of you. Thanks for joining the session. Inshallah, we will be meeting next Saturday same time, and you will be updated accordingly. और ये जो भी required resources हैं, that I will be sending to Sajid Saab, and he will forward you. Inshallah. Thank you very much. All the best and good luck for all your endeavors as teachers, instructors, trainers, whatever role you are playing for the education for the students. Okay. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Thank you very much. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Allah Hafiz, ma'am. Thank you very much. Thank you very much, participants.